student. Today I'm teaching you entrepreneurship for class 12, and in this video I'll explain you some topic based on the chapter 5th, Business Arithmetic. So in this chapter I already explained you few topics such as unit of sale, unit price and unit cost. We have find out when we have multiple types of product or services, जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं. एंड सेकेंड I explained you some formulas like unit price per customer, unit cost per product and gross profit. Then I'll explain ब्रेक इवन एनालिसिस कि ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे किया जाता है, सेल्स मिक्स ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन. ओके, नाउ न्यूमेरिकल पोर्शन वी विल डू लेटर. लेट मी एक्सप्लेन यू सम थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर. सो I'll select one topic, that is importance and uses of cash flow projection. So cash or money which means both currency and checks. तो currency का मतलब दोनों हो सकता है, cash का means दोनों हो सकता है, currency as well as check. तो currency तो in the form of money and check is in the form of the check. So is the lifeblood of every business. As we know that cash is the lifeblood of every businessman. It is the most important assets for the operation of business. तो business को करने के लिए एक बहुत ही important assets की तरह काम करता है cash. Now cash flow refers to the movement of money in and out of business during a specific period of time. तो किसी particular specific time पर मनी का आना और मनी का जाना, जिसको हम मूवमेंट ऑफ मनी कहते हैं, उसको हम कैश फ्लो कहते हैं. इट इज़ रिकॉर्डेड ऑफ अ मनीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो. और ये रिकॉर्ड किया जाता है कंपनी के एक रजिस्टर में जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो की एंट्रीज की जाती है. कैश इनफ्लो इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मनी इनटू अ बिजनेस एंड कैश आउटफ्लो इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ द बिजनेस. तो इनफ्लो का मतलब है कि कैश कंपनी में आया है एंड आउटफ्लो मीन्स द मूवमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ द बिजनेस, की जो मनी है वो बिजनेस से बाहर गई है. एज यू हैव सीन इन अर्लियर लेसन्स देयर आर वेरियस वेज इन विच मनी कम्स इन टू एंड गोज आउट बिजनेस. तो हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि कैसे हम अपना जो मनी का है वो मनी हमारी जाती है और मनी कैसे वापस आती है. कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट and getting the income. So cash flow projection shows how cash is expected to flow in and out of your business. तो cash flow projection हमें दिखाता है कि cash is expected to flow, कितना हमें cash requirement है और कितना हमारे cash business से बाहर जा चुका है. For you it is an important tool for cash management. तो बहुत ज़रूरी है कि हम cash management करें. Letting you know when your outflows are too high or when you might want to arrange short-term investment to deal with a cash surplus. तो ये हमारे लिए थोड़ा सा easy situation हो जाती है if we well known कि कितना हमारा investment हो चुका है, कितना हमारा पैसा जा चुका है. ठीक है. As part of your business plan, a cash flow projections will give you a much better idea of how much capital investment your business idea needs. तो जो हमारा cash flow projection है उससे easy हो जाता है, एक better idea हमको मिल जाता है कि कितना हमने cash लगा लिया है और कितना पैसा हमारा in हुआ है और कितना हमारा out हुआ है. तो ये हमारा cash flow projection एक best way है जो कि हमको बताता है. Now do not be confused. Okay, cash flow projection with a cash flow statement. Cash flow projection और जो statement है इसमें एक थोड़ा सा little difference मैं आपको बता रही हूँ. The cash flow statement shows how cash has flowed in and out of your business. Cash flow statement का मतलब है कि
आपका कितना कैश गया है और कितना वापस आया है। इन अदर वर्ड इट डिस्क्राइब द कैश फ्लो दैट द अकर्ड इन द पास्ट। और अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो ये हमें ये दिखाता है कि कितना हमारा पास्ट में पैसा लगा था, कैश फ्लो हुआ था। द कैश फ्लो प्रोजेक्शन shows the cash that is anticipated to be generated or expanded over a chosen period of time in the future। तो हमें इसके ईजी हो जाता है, कैश फ्लो प्रोजेक्शन हमें शो करता है कि कितना हमारा खर्चा हुआ है और आने वाले समय में हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक बैलेंस शीट की तरह होती है। एंड इनकम स्टेटमेंट डील्स विद द पास्ट, जो पास्ट से डील करने में हमें हेल्प करती है। इट डज नॉट हेल्प्स इन मैनेजिंग द करंट डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। एंड कैश फ्लो ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी क्रिटिकल मैनेजमेंट टूल फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अपने आप में एक बैलेंस शीट है जो कि दोनों ही टर्म आपको दिखा रही है, एसेट्स भी और लाइबिलिटीज़ भी, कैश फ्लो भी, कैश आउटफ्लो भी। लेकिन कैश फ्लो जो प्रोजेक्शन है वो हमें प्री प्लान करना पड़ता है, हम कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अवर पास्ट कैश हिस्ट्री। ठीक है। नाउ व्हाई कैश फ्लो प्रोजेक्शन, सिर्फ कैश फ्लो प्रोजेक्शन ही क्यों? सो एवरी बिजनेस मस्ट वांट टू मैनेज इट्स अफेयर्स इन अ वेरी इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर। तो कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपने जो भी डे टू डे का जो भी वर्किंग है उस या कोई भी अफेयर है उसको सही ढंग से एफिशिएंट मैनर से कंट्रोल करे, विच मीन्स इट मस्ट पे इट्स suppliers as per agreed terms, pay the employees for the wages on stipulated dates, pay government levies etc. as per rules, procure services and pay for the same, pay utility bills and rents etc. on time। कहने का मतलब है जो भी हमें पेमेंट करनी है वो हम राइट टाइम पे पेमेंट करें। द लिस्ट इज एंडलेस, इसका तो एंडलेस लिस्ट है। सिमिलरली इट मस्ट कलेक्ट वॉट इज़ ड्यू टू इट ऑल्सो इन अ टाइमली मैनर। तो जो भी हमारा ड्यू है, जो भी हमें देना है वो हम टाइम से सबमिट करें। इट ऑल्सो स्ट्राइव टू सेल मोर सो इट कैन कलेक्ट मोर। तो जब हम अगर हमें अपनी सेल को बढ़ानी है तो हमें ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा सेल करना पड़ेगा। सो वेरी ऑफन व्हेन बिजनेस इज एक्सपैंडिंग योर आउटफ्लो कैन बी मोर देन इन योर इनफ्लो। तो जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं तो हमारा इनफ्लो कम होता है, आउटफ्लो ज़्यादा होता है। दिस सो बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ लार्ज बिटवीन योर स्पेंडिंग एंड योर रिसीविंग द सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे उसमें आता कम है। जैसे हमारा खर्चा क्या है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, ठीक है, और रेवेन्यू हमें मिलेगा। तो रिसिप्ट ऑफ सेल्स रेवेन्यू may be delayed because you might have given credit or you have produced ahead of the sale to cater to high demand during festive season। मे बी आपका कोई ऐसा गुड्स है जो फेस्टिव सीजन में चले and temporary holding finished goods stock। In such a situation, you should be equipped with a sufficient information to be available to arrange for needed fund। Okay, now every nature of any business is uncertain। किसी भी कोई भी बिजनेस है उसका जो नेचर है वो अनसर्टेन है, कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है। सो यू बेस योर कैलकुलेशन ऑन सर्टेन एग्जेम्पशन। तो हमें कुछ एग्जेम्पशंस को साथ में रखते हुए ही बिज़नेस करना चाहिए कि जैसे ही प्राइस घटेंगे हम सप्लाई मार्केट में करेंगे और जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे, लाइक अनियन का अगर हम कर रहे हैं बिज़नेस, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे हम वैसे ही अपना स्टॉक मार्केट में लेके आएंगे। अब हमें ये कोशिश करना है कि हमारा स्टॉक भी बेकार ना हो। तो you plan the fund required using these assumptions, however your actual performance sales of sales could be higher or lower than your plan। तो आपका सेल डिपेंड करता है कि आपका जो प्लान है वो हायर है या लोअर है। ज़्यादा सेल है तो दैट्स मीन हायर है, कम है तो मीन्स लोअर है। इट विल रियली बी एग्जैक्टली पर प्लान और योर कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स हैज़ लेग्ड एंड यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, तो अगर आपका क्रेडिट बढ़ता जा रहा है, आप अपना क्रेडिट नहीं पे कर पा रहे हैं, तो दैट्स मीन आपका जो शॉर्ट फंड है आपके पास and you will not getting any profit। So there could be many other reasons so why your well laid out funding plan has gone for a toss।
So to avoid such situations and be on top of things, reviewing your projection periodically and recasting the future based the current status. तो हमें क्या करना चाहिए, अपने फ्यूचर का पहले से ही करंट स्टेटस को कंपेयर करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए. एंड व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर इज़ वेरी क्रिटिकल. ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये चेकआउट करते रहे कि नियरली फ्यूचर में क्या चीज़ होगा, ट्रेंड चेंज होगा या कोई भी चीज़ हो सकती है. तो कैश फ्लो प्रोजेक्शन इज़ नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, इट मस्ट बी यूज एज अ डायनेमिक टूल. तो कैश फ्लो प्रोजेक्शन अपने आप में कोई स्टैटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है. जैसे स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है. ये एक आइडिया है जो कि दिया जाता है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि पास्ट में हमारी क्या मिस्टेक हुई थी जो कि फ्यूचर में ना रिपीट हो. ठीक है.